Good morning, students. Myself Dhirendra. Today, I welcome you all in this session in which we shall discuss about the summary of lesson 1, the fun they had. That is the first lesson of your English book, Behave. After that, in the next coming sessions, the summary of other poems and lessons will be discussed. Now, I am going to tell you all the summary of lesson 1, the fun they had in English and Hindi both, and you all are expected to hear it very attentively from the very beginning to the end. The story is set in future in the year 2157, when printed books had ceased to be in use for a long time. That was why Margie, an 11-year-old girl, was thrilled when Tommy, a 13-year-old boy, found an old printed book in the attic of his house. She wrote in her diary, dated May 17, 2157. What did she write? Today Tommy found a real book. Margie's grandfather had once told her that when he was a little baby, his own grandfather had told him that there was a time when all stories were printed on paper. But in 2157, there were only moving e-textbooks which moved on their television screen. The television screen could have 1,000,000 books on it, so Margie found it unusual and funny to read words on the printed page that stood still instead of moving. Margie asked Tommy what the book was about. Tommy told her that the book was about a school. Margie had always hated school. She hated it more now because her mechanical teacher was giving her test after test in geography. Her mother was worried because Margie was not faring well in the tests. She was not performing well in the tests. Margie's mother called the county inspector. After checking the lessons, questions, Margie's homework and tests, he found that the geography sector of the mechanical teacher was a little too quick. He slowed the geography sector down to an average 10-year level. But Margie was disappointed because she hoped that he would take the teacher away for a long time. Being curious, Margie wondered why anybody would write about his school. Tommy explained to her that it was an old kind of school which existed centuries ago. She was surprised when Tommy told her that at that time the teacher used to be a human being. Margie commented that she would not want a stranger to come and teach her in her house. Tommy told her that the teacher at that time did not live in the house of a student. They had a special school building and all the children used to go there to study. Tommy further told Margie that at a time all the students used to learn the same thing at school. Margie commented that her mother had told her that a teacher had to be adjusted to fit the mental level of each boy and girl it taught. Each child was supposed to be taught differently. Tommy and Margie had not even half finished the printed book when Margie's mother reluctantly went into the schoolroom. Margie's school was right next to her bedroom. Her mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except on Saturday and Sunday. The screen was lit up and it instructed Margie to insert the previous day's homework into the proper slot.
Margie inserted her homework with a sigh. While watching the screen of the mechanical teacher, Margie was thinking about the old kind of school that existed long ago. She imagined how delightfully all the children would have been laughing and shouting in the schoolyard. They would have sat together in the schoolroom and went back home together. They could help each other to do their homework because they learned the same things. Beside it, Besides it, the teachers then were human beings and not mechanical. Margie was thinking of how much fun the children in those schools must have had. The summary in English is completed. Now I am going to tell you its Hindi translation, Hindi summary of this lesson. ये जो कहानी है ये 2157 मतलब फ्यूचर में सेट की गई है, जबकि ये प्रिंटेड बुक्स का जो चलन था वो लगभग बंद ही हो गया था काफ़ी दिनों से। काफ़ी दिन हो गया था इन प्रिंटेड बुक्स को यूज़ किए हुए, मतलब सब लोग अब प्रिंटेड बुक्स से, उस टाइम पर लोग प्रिंटेड बुक्स पर नहीं पढ़ें, किस चीज़ से पढ़ेंगे? ई लर्निंग। ई लर्निंग क्या होती है? टेलीविज़न पर या एक कोई भी ऐसा स्क्रीन होगा, उसी स्क्रीन पर उस बैठ कर के पढ़ेंगे और उस स्क्रीन में केवल एक या दो बुक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ बुक्स उसमें हो सकती हैं। जो भी बुक्स आप चाहेंगे वो बुक उसमें आपके सिलेबस की अपीयर हो जाएगी क्लिक करने पर। तो इसमें जो स्टार्टिंग में दो कैरेक्टर्स हम लोग के सामने आते हैं, मार्गी और उसका भाई टॉमी। तो एक दिन टॉमी को एक छज्जे पर, घर के छज्जे पर क्या मिलता है? एक बुक मिलती है। जैसे कि बुक आजकल हम लोग पढ़ते हैं, ये बुक उन लोगों के लिए सरप्राइज़ का एक मैटर बन जाती है। टॉमी जब ले जाकर के वो बुक अपनी बहन मार्गी को दिखाता है तो मार्गी पूछती है ये क्या है, ये क्या है? तो टॉमी जो है अपनी बहन से बताता है कि ये बुक है और ये बुक मुझे घर के छज्जे पर मिली है, मैंने इसको पाया है। तो उस दिन जो है ये इतने बड़े आश्चर्य की बात थी मार्गी के लिए कि उसने अपनी डायरी में नोट किया 17 मई 2157 टॉमी ने आज एक रियल बुक पाया है। ठीक है। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उसको एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने जो है क्या किया था, उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि जब वो पढ़ते थे तो उनके समय में बुक्स प्रिंटेड होती थीं, ये ई लर्निंग नहीं होती थी, ना ई टीचिंग ही होती थी उस टाइम पर। लेकिन 2157 में क्या होगा? देयर वर ओनली मूविंग ई टेक्स्ट बुक्स। लेकिन उस टाइम पर मार्गी और टॉमी के समय में क्या है कि वहाँ पर केवल ई टेक्स्ट बुक्स ही हैं, टेलीविज़न के थ्रू ही पढ़ाई होती है और एक टेलीविज़न में स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हो सकती हैं और एक या दो बुक नहीं, आपके बैग में तो मुश्किल से 5-6 बुक्स आ सकती हैं, 10 बुक्स आप रख सकते हो, जितने आपकी यूज़ की उस दिन की होगी डे के हिसाब से, उसके हिसाब से आप कंटेन करते हो। लेकिन जो टेलीविज़न स्क्रीन होती है, जो ई लर्निंग जो होती है, उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स हो सकती हैं। इसलिए मार्गी को ये बहुत अजीब सा लगा कि ये प्रिंटेड बुक्स देख कर के उसने उसको एक फ़नी मैटर बना लिया कि अजीब सा, एक बहुत ही मजाकिया चीज़ है ये तो, क्योंकि इसमें तो लेटर्स और ये वर्ड्स जो है मूव नहीं कर रहे हैं जैसे कि टेलीविज़न स्क्रीन पर होते हैं। इसमें तो जो अक्षर लिख दिया गया है, जो शब्द जहाँ पर लिख दिया गया है वहीं पर स्थिर है, मूव तो कर ही नहीं रहा। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ही आश्चर्य वाली रही और मार्गी ने टॉमी से पूछा कि आखिर ये बुक है किस चीज़ के बारे में, क्या लिखा है इसमें? तो टॉमी ने उसको बताया कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा गया है और मार्गी स्कूल से बहुत ही हेट करती थी और अब तो वो और हेट करने लगी थी। क्यों? क्योंकि उसका जो ये
ई लर्निंग का जो इंस्ट्रक्टर था, मतलब जियोग्राफी सेक्टर का, वो मैकेनिकल टीचर, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट उसको देता रहता था, और इसलिए वो बहुत नर्वस हो गई थी, और उसका इंटरेस्ट भी पढ़ाई से, स्कूलिंग से ख़त्म हो गया था। और उसकी जो मदर थी मार्गी की, वो भी बहुत चिंतित थी कि आखिर मार्गी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है। इसलिए मार्गी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जैसे टेलीविज़न में जिसके थ्रू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो उस फॉल्ट को दूर करने का काम काउंटी इंस्पेक्टर ही करेगा, मतलब जब ये व्यवस्था बनेगी तो वो आया, और उसने सारे काउंटी इंस्पेक्टर आया और उसने आ करके मार्गी के सारे लेसन्स, क्वेश्चंस, होमवर्क, टेस्ट, ये सब कुछ चेक किया। और उसने क्या कमी निकाली, ज्योग्राफी सेक्टर की जो मैकेनिकल टीचर में क्या कमी निकाली कि उसका जो लेवल था वो मार्गी के मेंटल लेवल से थोड़ा हाई था, इसीलिए उसकी बताई गई बातों को मार्गी समझ नहीं पा रही थी। तो उसने उसको मार्गी के एज लेवल का, एवरेज 10 ईयर लेवल का पर एडजस्ट कर दिया। उस जियोग्राफी सेक्टर का जो मैकेनिकल टीचर था उसको कितने पे सेट कर दिया? मार्गी के अकॉर्डिंग, मार्गी के एज लेवल तक, 10 ईयर्स जो हाई हो गया था लेवल, उसको मार्गी के लेवल तक कर दिया। लेकिन यहाँ पर मार्गी को और निराशा हुई। उसने सोचा था कि अब तो ये जो मैकेनिकल टीचर हैं, जो ये टेलीविज़न है, इसमें फॉल्ट आ गई है, काउंटी इंस्पेक्टर आएंगे, इसको यहाँ से ले जाएंगे, बनाएंगे अपने यहाँ, और उसको ये सब करने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर ने वहीं पर उसको बना दिया, रिपेयर कर दिया। तो इससे भी उसको बहुत निराशा हुई कि सोच रही थी कुछ दिन पढ़ाई लिखाई से फुर्सत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीइंग क्यूरियस, मार्गी वंडर्ड व्हाई एनीबडी वुड राइट अबाउट स्कूल ना। इतना उस बुक को लेकर के इतना क्यूरियस थी मार्गी कि उसको लगा कि स्कूल में ऐसी क्या खास बात होती है कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों कोई बुक लिखेगा, क्योंकि उस बुक में स्कूल के ही बारे में लिखा था जो टॉमी को मिली थी। तो टॉमी ने उसको बताया कि इस बुक में ऐसी स्कूल के बारे में लिखा गया है, ऐसे स्कूल के बारे में लिखा गया है, ऐसे स्कूल सेंचुरीज, मतलब 100-150 साल पहले हुआ करते थे। और मार्गी को यह सुनकर के और आश्चर्य हुआ जब मार्गी ने उसको बताया कि टीचर जो है मैकेनिकल नहीं होते थे, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स ही टीचर होते थे, मनुष्य ही टीचर होते थे, वही टीचिंग का काम करते थे। मार्गी ने कमेंट किया, अरे ह्यूमन बीइंग्स टीचर होते थे, ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो किसी भी, मार्गी ने कहा टॉमी से, कि मैं तो किसी भी अजनबी को परमिशन ही नहीं दे सकती कि वो आए और मेरे घर पर मुझे पढ़ाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो टॉमी ने उसको बताया कि ये वो टाइम था जबकि टीचर्स जो है वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे ही टीचर से पढ़ने आते थे, और टीचर एक स्पेशल स्कूल बिल्डिंग में रहता था, और वहाँ पर सारे बच्चे एक साथ कलेक्ट होकर के पढ़ने के लिए आते थे। अब टॉमी ने फिर से बताया आगे मार्गी को स्कूल के बारे में कि उस टाइम पर सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे क्लास में, जैसा कि आजकल आप लोग पढ़ते ही हैं कि सभी बच्चे जो है एक ही चीज़ एक साथ में पढ़ाई जाती है सबको। आप चाहे 50 की संख्या में हो, चाहे 60 की संख्या में हो, चाहे 40 की संख्या में हो, एक ही चीज़ आपको पढ़ाई जाती है और एक ही तरह का होमवर्क आपको क्लास में मिलता है। तो वही चीज़ वो टॉमी जो है मार्गी से बता रहा है। और ईच चाइल्ड वाज सपोज टू बी टॉट डिफरेंटली, और जो हर एक बच्चे के साथ अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता था। किसी के पास कम दिमाग है, किसी का अंडरस्टैंडिंग लेवल वैसा नहीं है, तो ह्यूमन बीइंग जब टीचर होता था तो वो जो है अपने आप को सबके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता था। और तभी क्या हुआ कि ये लोग, टॉमी और मार्गी दोनों लगभग आधी ही बुक पढ़ करके फिनिश कर पाए थे कि जो मार्गी की मदर हैं वो
स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम कहाँ था? स्कूल रूम दूर नहीं था। स्कूल रूम मार्गी के घर में ही बेडरूम के जस्ट बगल वाला जो रूम था वही स्कूल रूम था, वहीं पर वो पढ़ती थी। एक टाइमिंग फिक्स थी। और तभी क्या हुआ कि उसकी जो मदर थी वो गई स्कूल रूम में, क्या देखा कि मार्गी का जो स्कूल था वो बिल्कुल बेडरूम के ही नेक्स्ट बगल में था। तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल ऑन हो गया था, मतलब उसका स्विच ऑन था और मार्गी का इंतज़ार कर रहा था ऑन हो करके। और ये लगभग पर डे अपने फिक्स टाइम पर ऑन हो जाता था, 2 दिन छोड़ करके हफ्ते में। वो 2 दिन कौन से होते थे बच्चों? सैटरडे और संडे। इस स्क्रीन जो है वो चमक रही थी और मार्गी जो और वो जो इंस्ट्रक्टर था, जो मैकेनिकल टीचर था, वो मार्गी से बोल रहा था कि जो प्रीवियस डे का जो आपका होमवर्क था उसको ला करके स्लॉट में इंसर्ट करो, मैं उसको चेक करूँगा। मार्गी इंसर्टेड हर होमवर्क विद अ साई, और मार्गी न चाहते हुए भी अपने होमवर्क को उसमें इंसर्ट किया। और लेकिन इंसर्ट करने के साथ साथ वो क्या सोच रही थी? स्क्रीन, अपने मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन को भी देख रही थी और बार बार उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो इस स्कूल के बारे में उसने उस रियल बुक में पढ़ा था। क्या सोच रही थी उसके बारे में? कि कितने खुश होकर के बच्चे एक साथ जो है हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल का जो मैदान होता है उसमें खेलते रहे होंगे पुराने समय में। और एक साथ स्कूल आना, एक साथ स्कूल जाना, साथ में बैठ कर के लंच करना, कितना अच्छा रहा होगा, कितना अच्छा वो लोग फील करते रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे अच्छी चीज़ क्या थी जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद थी? वो ये थी कि सभी बच्चों को एक ही चीज़ पढ़ाई जाती थी और एक ही तरह का होमवर्क भी उनको दिया जाता था। और अगर एक ही तरह का होमवर्क दिया जाता था तो वो अपने किसी भी फ्रेंड से पूछ करके आसानी से होमवर्क कर सकती थी, जो कि उसके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है आज के समय में। ये प्रॉब्लम उस समय ना आती। और ये जो आपका मैकेनिकल टीचर है, मैकेनिकल टीचर की जगह क्या था उस टाइम पर? ह्यूमन बीइंग्स ही टीचर हुआ करते थे। ह्यूमन बीइंग्स टीचर हुआ करते थे। तो ह्यूमन बीइंग्स और मैकेनिकल टीचर दोनों में डिफरेंस होता है। मैकेनिकल टीचर आपकी भावनाओं को, आपकी इमोशंस को, आपके मेंटल लेवल को, आपको नहीं समझ सकता। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग्स टीचर है तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझेगा और आपकी उन प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन भी बताएगा। तो ये इस कहानी का एंड है बच्चों। ये मार्गी सोचती रह गई, सोच रही थी कितना मज़ा उस समय लोगों को पढ़ने में आता रहा होगा जब प्रॉपर स्कूलिंग की व्यवस्था थी और सभी बच्चे एक साथ पढ़ने आते थे, खेलते हुए, चिल्लाते हुए, बोलते हुए, हंसते हुए, और साथ में खेलते थे, लंच करते थे, छुट्टी होने पर साथ में जाते थे घर पे ना। तो ये उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तो ये इस लेसन का समरी है बच्चों। मैंने आज आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में बताया। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम समझने में हुई हो तो प्लीज़ उसको ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।